Good morning, students. Okay, so in the last class, we have completed a topic that is problems of agricultural marketing in India, in which we have studied the different problems the agricultural marketing suffered basically in India, that is predominance of the private traders. Next one is distress sale. Third is lack of transport facilities, lack of regulated market. Next is lack of infrastructural facilities and long chain of intermediaries. These all are the problems which the agricultural marketing suffers. Okay, now the next topic that we have completed, that is suggestions to improve the agricultural marketing system. Okay, so what are the different kind of suggestions which is provided by the basically the government as well as the local authority to improve the agricultural marketing system. So we have studied that there should be a government intervention in the market, and more of the rural market should be developed, and there should be a more and more infrastructure facilities should be provided to the basically in the rural areas, and the abolition of the intermediaries, a provision of the standardization and the grading of the products, so that the similar product can be differentiated from each other, dissemination of the market related information. Okay, so the different type of market related information should be propagated to the basically in the rural areas, and new cooperative societies should be developed, and the existing one should be developed improved, and the all financial institutions should provide the credit facilities in the rural areas to the farmers. Okay, we have already studied the alternative marketing channels. Different region has the different kind of market channels. Okay, so different states has their different market channel. Okay, and we have also started a topic that is diversification in agriculture. Okay, so as we all already know, that is agriculture is the backbone of the Indian economy. Okay, ये agriculture क्या है, Indian economy का backbone है, और most of the people, most of the proportion of the workforce are dependent upon the agriculture. की इंडिया की जो population की जो mostly जो people हैं, population है, वो किस पे based है, agriculture पे हैं. बट समटाइम्स क्या होता है कि ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न, मतलब ऑफ सीज़न में क्या होता है कि एग्रीकल्चर से इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स आर नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक देयर नीड्स. ओके, इन दैट कंडीशन क्या होता है कि फार्मर्स अपनी जो उनकी बेसिक सब्सिस्टेंस नीड है वो उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं. वो दे लूज़ देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो. उनकी जो भी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती है, इवन कहीं जनरेट भी नहीं होती है. तो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि उन फार्मर्स को बेसिकली जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर से एलिड एक्टिविटीज़ पे भी थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए. मींस ऑफ सीज़न में भी वो कुछ ऐसा कर सकें, प्रोडक्टिविटी बेसिकली इन दी नॉन फार्म एरियाज़ में, कि उनकी कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम कंटिन्यू रहे, एंड दे कैन ईज़िली फुलफ़िल हिज और हर बेसिक नेसेसिटीज़, कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सकें. ओके, सो देयरफॉर डाइवर्सिफिकेशन इज़ required for to the gainful employment that is basically located in the allied activities in the agriculture. So diversification towards the new area is necessary not only to reduce the risk from the agriculture. Means अगर जो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं कि वो बस इसलिए नहीं नेसेसरी है, not only to reduce the risk from the agriculture, कि उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर से जो भी रिस्क है वो रिड्यूस होगा, बट ऑल्सो प्रोवाइड दी प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन टू दी रूरल पीपल के लिए क्या एक डिफरेंट सोर्स हो जाएगा, डिफरेंट सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए उनके पास एक और ऑप्शन हो जाएगा. सो दीज आर दी टू एस्पेक्ट्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन. ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड here. So in today's class we are continue to start the
continuing that the aspect of the diversification. Okay, there are two aspects of the diversification. First one is diversification of the crop production and the diversification of productive activities. Okay, so in the diversification of crop production means change in the cropping पैटर्न. जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही है, कमोडिटी क्रॉप जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको क्या करना है, उनमें चेंज करना है. जो जिस पैटर्न से हम प्रोडक्शन कर रहे थे उसको हमें चेंज करना है. नेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उसी में क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है. सो शिफ्ट ऑफ द वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू other allied activities and non-agriculture sector like livestock, poultry and fisheries. इसमें क्या करना है, जो भी वर्कफोर्स, पूरी जो पॉपुलेशन है वो टोटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, तो उनको क्या करना है, शिफ्ट करना है बेसिकली इन दी अदर एलिड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक लाइवस्टॉक, poultry, farm as well as fisheries. So we will discuss all these points one by one. Okay, so first of all we are going to start the diversification of the crop production. की crop जो production हो रहा है उसमें क्या करना है, diversification करना है. and so it is basically related to the change in the cropping pattern. जो cropping pattern है, जो हम produce कर रहे हैं crop को, उनके pattern में ही change करना है. okay, so let's start diversification of the crop production. It relates to change in cropping pattern to shift from subsistence farming to commercial farming. It implies producing diverse variety of crop rather than one single crop. It refers to shift from single cropping system to multi-cropping system. It would help shift from subsistence farming to commercial farming, that is moving from food grains to cash crop. Okay, so इसका मतलब क्या है, इट रिलेट्स टू चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न. ओके, हमको जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा प्रोड्यूस करने का क्रॉप को, उसमें हमें शिफ्ट करना है. वो शिफ्ट कैसे होगा, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. मीन्स जो फार्मर्स बस अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको शिफ्ट किस पे करना है, कमर्शियल फार्मिंग. मीन्स अब वो प्रोडक्शन जो करेंगे वो उसको मार्केट में लेके जाएंगे. मीन्स कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि वो बस अपने लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, उसको वो कॉमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं. मीन्स उसको एक्सचेंज करेंगे. इन एक्सचेंज जो भी उनका सरप्लस, उनके जो क्रॉप हैं, उससे वो अगर वो मार्केट में लेके जाएंगे तो इन रिटर्न दे विल गेट द सम अमाउंट और सम फंड्स. ओके, इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा, कुछ फंड्स मिलेगा. ठीक है, तो इस क्रॉपिंग पैटर्न को क्या करना है, चेंज करना है. बस खुद की जो भी हमारी नीड है उसी को फुलफ़िल नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऐसे भी सरप्लस जो भी हमारा हो रहा है क्रॉप, उनको हमको क्या करना है, मार्केट में ले जाके उसको सोल्ड आउट करना है. फिर हम क्या कर सकते हैं, उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो अगर हम उससे इनकम जनरेट होगी तो हमारे पास इनकम हो जाएगी, और अगर ऑफ सीज़न भी होगा तो उनके पास एज अ सेविंग तो रखी रहेगी, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट एम्प्लाइज प्रोड्यूसिंग डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रादर देन वन सिंगल क्रॉप. इसमें ये कह रहा है कि एक सिंगल क्रॉप को प्रोड्यूस करने की जगह पे क्या कर सकते हैं, डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप. की अगर एक फार्मर है, वो अपने हर एक फार्म पे या अपने हर एक लैंड पे वो क्या कर रहा है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है. नहीं, अब ये कहा जा रहा है वो वीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो पल्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो राइस भी प्रोड्यूस कर सकता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है. सो अभी क्या है कि जो वो बस वीट ही प्रोड्यूस कर रहा था, मींस एक सिंगल क्रॉप को जो प्रोड्यूस कर रहा था, वो क्या कर सकता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप को भी प्रोड्यूस कर सकता है. इट रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम. कि अभी हमको क्या शिफ्ट करना है, फार्मर्स को क्या शिफ्ट करना है, कि जो एक सिंगल क्रॉप वो लगा रहे थे उसकी जगह वो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को वो यूज़ करे और एडॉप्ट करे. सो इट वुड हेल्प शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. ओके, ये क्या हेल्प करेगा कि वो बस अपनी जो नीड्स के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो जो फार्मिंग कर रहे थे उसकी जगह वो कमर्शियल फार्मिंग करेंगे, जिससे उनको इनकम भी जनरेट होगी. सो मूविंग फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप. ओके, बस अपने फूड ग्रेन्स के रिटर्न में वो क्या करेंगे,
कैश भी पाएंगे उस क्रॉप का जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया. ओके, सो चॉइस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द क्रॉप एंड हेंस अकॉर्डिंग टू द प्राइस स्ट्रक्चर. कि जो भी क्रॉपिंग पैटर्न उसको चेंज करना है, किसी भी फार्मर को चेंज करना है, वो जो उसको चूज़ करेगा वो कैसे हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ द क्रॉप. कैसे कि अगर वो डिमांड देख रहा है कि अभी एट प्रेजेंट वीट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक, अब वो क्या करेगा, डिमांड अगर वीट की बहुत ज़्यादा है या कोई वेजिटेबल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा, जो वेजीज़ डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स होती हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, अब उस पहले वो राइस को प्रोड्यूस करा था, अब राइस को रिप्लेस करके वो क्या प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट वेजिटेबल्स. ओके, सो ये क्या है, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द क्रॉप, कि किस क्रॉप की अभी डिमांड चल रही है, एंड हेंस अकॉर्डिंग टू द प्राइस स्ट्रक्चर, कि कौन सी कॉमोडिटी, कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस करने में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो. इन केस हो सकता है वो पल्सेस प्रोड्यूस करे. सो पल्सेस प्रोड्यूस करने पे उसको क्या हो रहा है, उसको जो प्राइस है, अगर अमाउंट है वो सोल्ड आउट करने पे उसको ज़्यादा मिल रहा है, इनकम ज़्यादा हो रही है एज़ कंपेरिजन टू राइस. सो ही और शी विल प्रेफर टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर पल्सेस. ओके, वो क्या प्रेफर करेगा कि पल्सेस को वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे. सो चॉइस ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द क्रॉप, कि किस क्रॉप की डिमांड है एज वेल एज उसका प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, कि उसको प्रोड्यूस करने पे उसकी कितनी इनकम जनरेट हो रही है. ओके, सो लेवल ऑफ इनकम वुड इंक्रीज इफ प्राइस फ्लक्चुएशन एंड कैश क्रॉप आर कंसीडर्ड बाय द मिनिमाइजिंग द मार्केट रिस्क. It's the minimizing of the market risk line should be like the insurance policy के जो ऐड आते हैं ना, minimizing the market, उसके टाइप के. ओके, सो द लेवल ऑफ इनकम वुड इंक्रीज, जो लेवल ऑफ इनकम है फार्मर्स का, लेवल ऑफ इनकम जो है फार्मर्स का वुड इंक्रीज इफ़ प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी. प्राइस क्या हो सकती है, जो पहले कम थी अब वो ज़्यादा हो सकती है, प्राइस जितनी थी उससे कम भी हो सकती है. वी विल टेक एज अ पॉजिटिव सेंस की लेवल ऑफ इनकम वुड इंक्रीज इफ़ प्राइस फ्लक्चुएशन. मीन्स पहले वही फार्मर्स क्या था, फार्मर जो राइस 10 पर केजी कर रहा था, अब वो क्या है, उसको अब उसकी प्राइस हो सकता है उसको 12 पर केजी मिले. सो इनकम उसकी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई ना, प्राइस के फ्लक्चुएशन होने पे. सो कैश क्रॉप आर कंसीडर्ड बाय द मिनिमाइजिंग द मार्केट रिस्क. तो कैश क्रॉप अगर वो प्रोड्यूस करेगा, उसको मार्केट में लेके जाएगा, तो जो उसके रिस्क हैं वो क्या होंगे, मिनिमाइज होंगे. बिकॉज अभी वो बस एक कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा था, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ज़्यादा फोकस कर रहा था, कि वो बस ये सोच रहा था कि हमारी फैमिली है उसको उसकी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल हो जाए, बस हम वहीं तक करेंगे. बट अभी क्या कहा है कि अपने उस क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना है, उसको कमर्शियल फार्मिंग के लिए ज़्यादा फोकस्ड करना है. मीन अभी मेरी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है, अगर मेरे यहाँ फार्मर्स के यहाँ या मेरे यहाँ कोई भी अगर 50 kg हम राइस रख लेते हैं, ठीक, 50 kg, तो उसको पता है कि 50 kg मेरे यहाँ राइस लगेगा. उसके बाद उसका जो भी सरप्लस उसने प्रोड्यूस किया है वो उसको क्या करेगा, कमर्शियलाइजेशन और कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर देगा. तो वो जो अमाउंट उसके पास आया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 आया, तो वो उस 1000 को क्या कर सकता है, एज अ सेफ साइड रख सकता है. तो जो भी मार्केट के रिस्क हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर उसके पास अमाउंट ना बचे, फंड ना बचे, तो इन फ्यूचर वो उस मनी को यूज़ कर सकते. तो इसलिए ये बात हो रही है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स बस हम एग्रीकल्चर पे बेस नहीं होंगे, हम लोग कुछ उसके ऑप्शंस भी सर्च आउट करेंगे, सो दैट हमारी जो भी मिनिमम नीड्स है दे कैन फुलफिल ईजिली. ओके, सो वी हैव टू स्टडी द two aspect of diversification. First one is diversification of crop production, in which change in cropping pattern we have studied. Now we are going to start the diversification of production activities. Okay, so as agriculture is already overcrowded, a major proportion of the increasing labor force needs to find alternate employment opportunities in other non-farm sectors. Non-farm activities have several subsectors.
Okay, so as agriculture is already overcrowded, so as we already know कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस्ड है, तो वो क्या है, ओवर क्राउडेड है. अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स नीड्स टू फाइंड ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जो इंक्रीजिंग लेबर फोर्स, जो डे बाय डे जो लेबर फोर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, सो दे हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. कुछ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको चाहिए इन दी नॉन फार्म सेक्टर, नॉन फार्म सेक्टर्स में. सो द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैव दी सेवरल सब सेक्टर्स. What are the different non-farm sector we will discuss. So non-farm activities have the several sub-sectors. इसके भी क्या है, non-farm sectors के बहुत several sub-sectors हैं. So some sub-sectors are dynamic, possesses dynamic linkages that permit healthy growth. As they some sub-sectors are dynamic as they have sufficient infrastructure to grow, while other subsectors have the potential but do not have sufficient infrastructure to develop, as they are in subsistence, low productivity propositions. Okay, yes, some sectors are dynamic. Okay, some sectors जो भी सब सेक्टर्स हैं नॉन फार्म एरियाज़ में, बेसिकली हम लोग क्या उसमें करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, आपके लाइफ स्टॉक हो गए, फिशरीज़ हो गई, दीज ऑल आर दी नॉन फार्म सेक्टर. तो ये सारे क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं. मीन्स रिजिड होना हो के वो क्या है, बहुत ज़्यादा डायनामिक है. तो ये क्या, एज दे हैव, बिकॉज एज दे हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रो. ठीक है, बिकॉज कुछ ऐसे सब सेक्टर्स हैं वो क्या हैं, डायनामिक हैं, जिनके पास क्या है, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है टू ग्रो. उनके पास ऑलरेडी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड हैं कि वो ग्रो कर सके. while some other sectors have the potential but do not have the sufficient infrastructure. Okay, और कुछ ऐसे भी सब सेक्टर्स हैं जिनके पास पोटेंशियल तो है बट दे डू नॉट हैव अ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. उनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो डेवलप हो सके, बट दे हैव द पोटेंशियल टू डेवलप एज दे आर इन सबसिस्टेंस एंड लो प्रोडक्टिविटी प्रोपोजिशन. मीन्स उससे क्या होती है, उनकी लो प्रोडक्टिविटी होती है. सो नॉन फार्म एरियाज़ को भी कुछ सेवरल सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है. उस सेवरल सेक्टर्स में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके पास क्या है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है बट दे आर नॉट ग्रोइंग टू मच. ओके, उनके पास वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव अ पोटेंशियल, दे डू नॉट हैव कीन इंटरेस्ट टू डेवलप देयर. एज वेल एज some sub-sectors are there, they have potential but they do not have a infrastructural facilities. उनके पास infrastructural facilities नहीं है कि वो उसको डेवलप कर सके. इन दैट केस क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है. ओके, सो द डायनामिक सबसेक्टर्स includes agro processing industries, food processing industries, leather industry, tourism etc. ओके, सो जो डायनामिक सब सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है बट वो ग्रो नहीं करी, तो उसमें क्या क्या आती हैं, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें क्या होता है, एग्रो प्रोसेसिंग में शुगर से रिलेटेड की शुगर को किया जाता है, शुगर केन के थ्रू ग्रेन्स जाते हैं, उसमें स्पाइसेस जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मसाले जो होते हैं वो, फिश, मिल्क, दीज ऑल आर दी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें क्या है, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. ओके, सो दे हैव द सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रो, while some sector have the potential, they do not have the sufficient infrastructure. Okay, so these all are the agro processing industries जिनके पास क्या है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल की फैसिलिटीज़ है. फूड प्रोसेसिंग, जो भी फूड प्रोसेसिंग के लिए सारे होते हैं ना, जो फूड आइटम्स बनाते हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है टू ग्रो. ओके, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं और कुछ ऐसे कुछ ऐसे सब सेक्टर्स हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड ही नहीं है कि वो ग्रो अप कुछ कर सकें. ओके, सो अदर सब सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्री लाइक पॉटरी, क्राफ्ट, हैंडलूम्स. देखिए ये सारे क्या सब सेक्टर्स हैं कि ये सारे पॉटरी, डिफरेंट क्राफ्ट्स बनाना, हैंडलूम बनाना, ये जो पॉट्स बनाते हैं ना,
ये सारे क्या हैं, ये सब ऐसे सब सेक्टर्स हैं जिनके पोटेंशियल है बट इनके पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि ये लोग डेवलप कर सकें। और कुछ ऐसे सब सेक्टर्स हैं जिनके पास पूरी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है, लाइक एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, लेदर होता है, लेदर की जो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे आपके स्लीपर्स होते गए और आपके पर्स हो गए, ये सब बनते हैं ना, बेल्ट, वॉलेट, दीज ऑल आर दी रिलेटेड टू दी लेदर इंडस्ट्री। टूरिज़्म, तो इसमें क्या है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ majority of the rural women find employment in agriculture, refer to box 6.2. okay, so while men in the rural area used to look for the non-farm employment, in recent times women have also begun looking for the non-farm jobs. okay, so majority जो rural women की है find employment in agriculture, कि नॉर्मली जो रूरल विमेन है वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट उन्हें कहाँ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जो मेन हैं वो कहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड करते हैं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में, कि जो फार्म से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है वो नॉन फार्म से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है, दे फोकस देयर। बट इन रिसेंट टाइम वुमेन हैव ऑल्सो बिगन लुकिंग फॉर दी नॉन फार्म जॉब्स, क्योंकि अभी विमेन भी क्या है, हैंडलूम्स के स्टार्ट कर दिया है, पॉटरी स्टार्ट कर दिया, तो मेजॉरिटी यही कहती है कि अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरियाज़ में विमेन कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और मेन कहाँ पे वर्क करते हैं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। सो तमिलनाडु, इट इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द तानवा, इट इज़ कॉल्ड तानवा। ओके, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर. Tanva is a project initiated in the Tamil Nadu to train women in the latest agriculture techniques. It induces women to actively participate in raising agricultural productivity and family income. At a farm women group in Tiruchirappalli, run by the Anthony trained women are successfully making and selling vermicompost and earning money from his venture. Many other farm women groups are creating saving in their group by functioning like mini bank through a microcredit system. With the accumulated saving, they promote small scale household activities like मशरूम कल्टीवेशन, सोप मैन्युफैक्चर, डॉल मेकिंग और अदर इनकम. ओके, सो ये क्या एक प्रोजेक्ट इनिशिएटेड है तमिलनाडु में. बेसिकली इसमें क्या करती हैं, जो विमेन है वो एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या करती हैं, वर्क करती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी करती हैं और फैमिली इनकम जनरेट करती हैं एज वेल एज. और अदर विमेंस क्या हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके इनकम को जनरेट कर रही हैं और उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको वो सेव करके एक्यूमुलेटेड सेविंग दे हैव स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में भी वो उसको इन्वेस्ट करी, जो भी वहाँ से वो सेविंग कर रही हैं. फिर मशरूम को कल्टीवेशन करना, मशरूम लगाना, सोप का मैन्युफैक्चर, डॉल मेकिंग. सो दीज ऑल आर दी सम एक्टिविटीज़ विच इज़ डन बाय दी तमिलनाडु वेमेन. ओके, सो एज देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स लाइक दिस, कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है. ये सब क्या है कि विमेन क्या हैं, कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेशन करी, कि उन्हें पता है कि वो टोटली डिपेंडेंट किसी और पे नहीं हो सकती हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेती रहती हैं कि सो दैट दे कैन ऑल्सो हेल्प देयर फैमिली मेम्बर्स टू जनरेट सम काइंड ऑफ इनकम ऑल्सो. So next is important non-farm areas of employment. Okay, so basically there are important non-farm areas of employment in, first one is animal husbandry, second is fisheries, third is horticulture, and fourth one is other alternate livelihood options. Okay, so let us discuss these in detail. So first of all, these all are the non-farm areas of employment. Okay, which is related non-farm areas, मतलब जो भी employment है वो farm में नहीं है, उसके against जाके other non-farm area, मतलब वो land से related नहीं है. So in which we have to study the animal husbandry, fisheries, horticulture and other alternate livelihood options. इसमें other options भी आएंगे. So
first of all we will discuss animal husbandry. Okay. In India, the farming community used to mixed crop, livestock farming system. Cattle, goats, fowl are the widely held species. Livestock production provides increased stability in income, food security, transport, fuel and nutrition for the family without disrupting other food producing activities. Today, livestock sector alone provide alternate livelihood options to over 70 million small and marginal farmers, including landless laborers. A significant number of the women also find employment in the livestock sector. Okay, so poultry accounts for the largest share with the 58%, followed by the others. Other animals include camels, asses, horse, ponies and mules are in the lowest rung. India had about 300 million cattle, including 108 million buffaloes in 2012. Performance of Indian dairy sector over the last 3 decades has been quite impressive. Milk production in the country has increased by more than 8 times between 1950 to 2040. Okay. This can be attributed mainly to the successful implementation of the Operation Flood. Okay, Operation Flood, it is related to the milk. Okay, it is also the some kind of revolution, white revolution. So Operation Flood is related to the milk. Okay, so in India, the farming community uses the mixed क्रॉप लाइवस्टॉक फार्मिंग सिस्टम. देखिए लाइवस्टॉक का सिंपली मीन होता है कि वो लोग एनिमल एज अ असेट रखते हैं. एनिमल्स ही उनके लिए असेट होते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ कैटल्स को रखना, बफेलो, गोट, काउज, तो उनको ही वो रख के जो भी उनके मिल्क होते हैं उसका वो सोल्ड आउट करके वो इनकम जनरेट करते हैं. ओके, कैटल्स हो गए, उनके काउज, गोट्स हो गई, फाउल हो गए, जिसमें क्या होता है बर्ड्स के जो एग्स होते हैं, ठीक है, फॉर दी वाइडली हेल्ड स्पीसीज. ओके, कॉक, हैन, उसमें सारे ही सबके एग्स आते हैं, ठीक है, फाउल में, कि उनके एग को भी वो क्या करते हैं, सोल्ड आउट करते हैं. सो एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस दी मिक्स्ड क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग सिस्टम. तो ओके, ठीक है, वो लोग एनिमल एज अ असेट रखते हैं, जिसमें वो लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को रखते हैं और उनके मिल्क को, उनके एग्स को सोल्ड आउट करके इनकम जनरेट करते हैं. सो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स increase stability in the income, food security, transport, fuel, nutrition for the family without disrupting other food producing activity. Livestock जो भी production होता है, increase stability, ये क्या होता है कि देखिए कभी भी लाइफ में आप किसी भी ऑफ सीज़न हो या ऑन सीज़न हो, ये इन सब का यूज़, मतलब मिल्क का यूज़ करना, इनकी कभी भी रिक्वायरमेंट एंड नहीं हो सकती. ठीक है, तो इससे क्या है कि स्टेबिलिटी होती है इनकम में, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़. ठीक है, तो इसमें सारे लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में आते हैं. सो टुडे लाइफ स्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन टू दी ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. ठीक है, अभी प्रेजेंट में क्या है, लाइफ स्टॉक क्या कर रहा है, 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये क्या एक ऑप्शन दे रहा है कि वो लोग इंक्लूडिंग ये लैंडलेस लेबरर्स, जो भी लैंडलेस लेबर है, जिनके पास लैंड भी नहीं है, उनके पास ये ऑप्शन दे रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं. अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन दी लाइफ स्टॉक सेक्टर. ओके, बहुत सारी विमेन भी क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट फाइंड कर रही हैं इन दी लाइफ स्टॉक सेक्टर. पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर, 58% क्या कर रहा है वो अदर को फॉलोड करके 58% पोल्ट्री फार्म में हो रहा है, जिसमें अदर एनिमल्स, जिसमें कैमल्स, एसेस, हॉर्स, पोनीज एंड म्यूल्स, ये सारे एनिमल्स आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में. फिर उनके वो क्या कर सकते हैं, उनको उनसे जो भी रिलेटेड उनके एग्स हो गए, जैसे उनको क्या करते हैं, वो सोल्ड आउट करके इनकम जनरेट करते हैं. मिल्क हो गए. इंडिया हैड अबाउट दी 300 मिलियन कैटल. इंडिया के क्या है, अराउंड 300 मिलियन कैटल है, कैटल्स, जिसमें सारे काउज और यही सब आते हैं, बफेलोज.
इंक्लूडिंग 100 मिलियन बफेलोज, जिसमें 108 मिलियन बफेलोज हैं इन 2012. Okay, so performance of Indian dairy sector over the last 3 decades has been quite impressive. कि जो भी इंडियन डेयरी सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है फ्रॉम द लास्ट 3 डिकेड मीन 30 ईयर्स में, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है. मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज बाय मोर देन 8 टाइम्स बिटवीन दी 1952 2014. जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है, इंक्रीज मोर देन 8 टाइम इंक्रीज हो गया बिटवीन दी 1951 टू 2014. 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया है. And this can be attributed mainly to the successful implementation of Operation Flood. So it is totally only because of the Operation Flood कि इसके implementation होने के बाद ये successfully implement हो गया है in the production of the milk. So India is in the best condition for their इन दी एनिमल हस्बेंड्री, और इंडियन डेयरी का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज़ क्लास. वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास.